हमारे साथ है आज मिस श्वेता। तो उनसे जानते हैं उनकी लाइफ जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले श्वेता, आप अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दो स्टूडेंट्स को, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay, okay. Thank you so much, sir, for having me here. So I'll start with my brief introduction first. I firstly pursued my BTech in chemical engineering from Banasli University. Then, as like everyone, I took GATE coaching from Ankur sir only. So after that, I got admission into IIT Delhi for my masters. Post that, 2 years I was there. Post that, I went to RFCL, Ramagundam Fertilizers and Chemical Limited, which comes under National Fertilizers Limited, which recently upgraded to Navratna. So after that, I was there for 4 years. I was posted in Hyderabad, Telangana. So I had a very wholesome experience because it was like commissioning, and I was not attached to one particular department. Rather, I moved here and there. So I learned, quite a lot. To be honest, I learned a lot. It was not a routine job per se, as we all think about PSUs. So it was a very learning extensive job. But again, I had my great time there. But after that, I felt that I need to, apply those learning somewhere else, because eventually the PSU monotonous thinking was kicking in. So I started looking for option. Back then we did not have any option like Ankur sir is doing right now. So I had to talk a lot of people. It took 1 year of at least convincing myself that I want to move ahead from this job and I don't want to stay there. So I started looking for option. Then I came across CAT as one of the viable option that I could do. So yeah, I talked to a lot of people how the loan process works out, how how much percentile I need to get into top B schools, and then like the basic stuff like कि कितने तक होने पे मतलब I will be in a better off situation. बिल्कुल। So then I started my cat prep, and then it went on for 6-7 months, and then the interview started. I got call from good IIMs, and then finally I got into IIM So 2 years I was there, and I recently graduated from IIM Calcutta from their main flagship MBA program. And so I joined Accenture Strategy and Consulting as a consultant here. And yeah, that's all about me. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग जर्नी। एंड बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने इस जर्नी में गेन किए, जो जिसने आपको भी डेफिनेटली एक बहुत बेटर पर्सन बनाया होगा। और आज इस सेशन से जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इन पूरी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जैसे आपने अभी बीच में बात करी कि आरएफसीएल के अंदर आपकी पोस्टिंग हुई थी, और 4 साल आपने वहाँ पे रिगरस और एक्सटेंसिव ट्रेनिंग करी, काम किया, और चीज़ें काफ़ी सीखने को मिली, है ना? तो अभी आरएफसीएल की वैकेंसीज भी एक्चुअली निकली हुई है। तो मैं एक बार आपसे जानना चाहूँगा ब्रीफ में कि आरएफसीएल एज़ ए कंपनी क्या है? व्हाट इज़ आरएफसीएल, अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्या कंपनी है, क्या काम करती है, और एक केमिकल इंजीनियर का आरएफसीएल में रोल क्या होता है? तो उसके बारे में प्लीज़ बताइए। Okay. So I'll start with my experience with या RHCL. So basically, when I joined, it was still somewhat in the documentation commissioning stage. So wo progress kar raha tha. I joined in 2018. Uh, when I entered into RFCL, so I was appointed as a production engineer. But production तो eventually मतलब तब तक start हुआ नहीं था मेरे time सही पे. बात है। तो मैं क्या था, EIL हमारा promoters है, NFLs हमारा promoter है. तो I was on deputation. I was again sent back to EIL. तो दैट वाज अ वेरी लर्निंग गुड थिंग दैट मेरे को EIL के साथ भी काम करने को सही मिल बात रहा है. आई गॉट टू नो देयर वर्क एथिक्स, हाउ देयर हाउ द प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एवरीथिंग है। takes place in EIL basically. So that was very good opportunity that I got there. So afterward I stayed there for around 1.5 year. So there were very few people, I guess one and other person also. So one other person got that opportunity to basically work with EIL, and then we stayed for some time, and it was very learning extensive, to be honest. मतलब ऐसा केमिकल इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में बोला जाता है कि आप 10 साल का एक नॉर्मल प्लांट का रूटीन एक्सपीरियंस ले लो, और आप 2 साल का कमीशनिंग, 2 या इवन 1 साल का बिल्कुल, भी कमीशनिंग एक्सपीरियंस ले लो. दैट बिल्कुल। इज एक्चुअली इक्विवेलेंट, बिकॉज what happens in a commissioning plant is you actually see things building up. Like बचपन में हम लेगो सेट से बनाते हैं ना, छोटा 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 करके, हुँ, then we make a bridge. So you actually see the nuts and bolts of a plant, कि ये लाइन यहाँ पे गई है, ये ऐसे गई है, तो ये वाली भी जो लाइन यहाँ पे गई है, ये एक्चुअली ऐसे प्लांट थी, बट ये प्रॉब्लम आई थी, तो ये ऐसे करके गई है करके. एग्ज़ैक्टली। सो यू नो ईच एंड एवरीथिंग, योर थ्योरेटिकल नॉलेज, जो मुझे एक्चुअली वो चीज का था कि यार इतना सब केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ लिया, बट इसे अप्लाई कैसे करें, तो वो हुँ, वहां पे एक्चुअली अप्लाई होता है, नॉट इन रूटीन प्लान. रूटीन प्लान में तो बस वो बता देते हैं कि चलो DCS ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे करना है. इट्स लाइक अ गेमिंग सेटअप, टू बी सही बात ऑनेस्ट. है, सही सो बात है।
उस टाइम पे वहां पे चल रहा था कि मतलब आपको लेजिट ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ रहा है कि जूनियर्स वो सीनियर्स आप पे छोड़ दे रहे हैं कि कम अप विद अ सोल्यूशन, देन यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म कि अच्छा ये ऐसे हुआ, अब इसके अच्छा ये लिमिटेशंस है, अब हमें इस लिमिटेशन के अंडर काम करना है, तो अब हम वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो वाला जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज्यादा अच्छा था मेरा, टू बी ऑनेस्ट, कि मतलब स्टार्टिंग के 2-3 साल तो ऐसे कि जितना सीख लो उतना कम है। आई मतलब ऐसे बोला जाता था कि आप प्लांट में कहीं भी खड़े हो जाओ, यू विल बी लर्निंग समथिंग न्यू। So that was actually quite true there. So after that, I moved into production. I stayed in production for pre-commissioning and all. Then फिर ऐसे क्या था कि I somehow built a rapport in my company कि ठीक है, I am bit hardworking and all, and I like to work. कि not like कि अगर दे दिया तो अगर वो थोड़ा डिले हो जाएगा, it's like my work ethics were very good. तो they started, they were thinking of setting up a technical services department. So they named me के like इसको लेते हैं, ये Okay. अच्छा काम करती है तो करके। तो that's how I started and I actually built a entire department. Like 3 ही लोग थे and 3 लोगों में वो पूरा plant coordination देखना और ये सब। Then I was also responsible for environmental cell. Then I was licensing with state and central government कि Okay. कैसे वो क्या क्या रिपरकशंस होते हैं while operating a plant, हम कैसे गवर्नमेंट की बाउंड्रीज की पर्व्यू में आते हैं, हाउ टू हैंडल दैट एज वेल। तो वो सारी चीज देखने तो इट वाज अ वेरी लर्निंग एक्सटेंसिव, मतलब आई डू नॉट Seriously. थिंक के कभी मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा एक्सपोजर मिल पाता जो कि उस प्लांट में मिला अपॉर्चुनिटीज वाइज। और इफ आई टॉक अबाउट द बेनिफिट्स एंड ऑल, ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब में अगर आप काम कर रहे हो तो जॉब सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी देयर। लाइक ठीक है, मतलब मैं काम कर रही थी बिकॉज आई वांटेड टू वर्क, बट देयर वर सही बात पीपल है। हु वाज नॉट गिविंग देयर 100%, बट दैट इज 100%. आल्सो फाइन बिकॉज यू आर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट जॉब, राइट। Exactly. कि Exactly. उसके बाद क्या था कि आपके मेडिकल बेनिफिट्स अच्छे हैं, आपको वहां पे अपार्टमेंट वगैरह मिलेगा, तो ये सब जो एक्स्ट्रा चीज है बेसिकली वो सब के बारे में आपको इतना सोचना नहीं है। प्लांट से जो आपका टाउनशिप है वो 1 किलोमीटर दूर है, तो जाना है बस। अगर बीच में कुछ फैमिली इमरजेंसी भी आ गई तो यू कैन रश बैक टू द प्लांट टाउनशिप अगेन। तो वो सारा था कि अंडरस्टैंडिंग लोग थे थोड़ा, मतलब आप उन्हीं लोगों के साथ काम करो बेसिकली, उन लोगों से दे रहे, तो दे वर लाइक लीनियंट, दे वर नॉट दैट स्ट्रिक्ट कि नहीं प्लांट के टाइम पे बाहर नहीं जाना। अगर ठीक है किसी को कुछ अर्जेंसी है, कोई डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, यू कैन इजीली go and have it, but that was again limited to that particular PSU. I cannot say it will be बिल्कुल. applicable to other PSUs as well. So this is my experience basically with RFCL. So again मतलब हाँ लर्निंग वाला काफी था, प्लस प्लांट्स में जो भी होता है ना कि जब हमारा लर्निंग फेज कब होता है, अगर प्लांट कोई भी रूटीन चलता रहेगा तो आपका उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, 2-4 आपने पूरा ऑटोमेटेड है, 2-4 आपके पैरामीटर्स है, ऊपर नीचे होगा, थोड़ा बहुत कुछ करोगे, 8 घंटे की शिफ्ट में ज्यादा कुछ नहीं होता है। सही बात है. बट एक एनुअल टर्न डाउन जब काम करता है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है प्लांट में, तो हमको एक्चुअली पता चलता है कि कैसे कैसे रेक्टिफाई करते हैं, दैट इज एक्चुअली द लर्निंग फेज। सो Exactly. उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे प्लांट में बहुत प्रॉब्लम आई अच्छा. उसको बहुत टाइम लगा सेटअप करने के लिए, बट अगेन इट वाज लाइक ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर ऑल द वर्कर्स बिकॉज वी वर लर्निंग क्वाइट अ लॉट कि अच्छा मतलब उधर ऐसा था कि एवरीथिंग दैट कुड गो रॉन्ग हैज गॉन रॉन्ग देयर। तो तो इसलिए इट बिकम क्वाइट अ लर्निंग एक्सटेंसिव फॉर ऑल ऑफ अस इवेंचुअली। ग्रेट, ग्रेट. तो